أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ہوسٹ ادا آصف. جیسا کہ آج جمعے کا دن ہے اور سب سے بڑی بات آج 12 ربیع الاول کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دن پیدائش ہوئی تھی اور اسی لیے ہر مسلمان جو ہے آج کا دن بہت ہی خوبصورتی سے عید کی طرح مناتا ہے. تو میں بھی آج جو ہماری K21 کی ٹیم ہے، میں نے ہماری باخبر کراچی کا جو پروگرام ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہم لوگوں نے جو ہے محفل نعت خوانی محفل کا سلسلہ ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھا ہے. اور اسی طرح ہم لوگ خوبصورت جو ہے ہم لوگ نعتیں جو ہے پڑھتے جائیں گے اور جو ہے ہم سوالات بھی کریں گے. جشن یہ جو میلاد نبی ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے اور جو ہے کیوں ہم چراغاں کرتے ہیں اور اچھے کپڑے کس وجہ سے پہنتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ان کے مائنڈ میں کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ جو ہے آپ لوگ اس طرح سے یہ کیوں کرتے ہیں جبکہ یہ شرک ہے. لیکن نہیں، آج ہم اپنے جو ہے پروگرام میں مذہبی اسکالرس بھی بٹھائیں گے، نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہم آپ لوگوں کے سوالوں کا بھی جواب دیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ایسی ہو نہ زباں خدا نہ کرے. ہمارے ساتھ اس سے پہلے موجود تھے قاری عبدالحمید سلطانی اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں زینب لاکھانی. زینب، میں چاہوں گی آپ اپنی خوبصورت آواز میں کوئی ہم پیش کریں. جگر پہ لکھ کے لایا تم سے کیا مانگوں میں، تم خود ہی سمجھ لو مولا مولا مولا
میرے مولا 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 میرے مولا 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 دراڑے دراڑے گے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا جو بھی تیرے در آیا جھکنے جو سر آیا مسیح بھی لے کے جھومتا نظر آیا وہ سرور میں سب کو جھومتا نظر آیا پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا نور کی بارش میں نور کی بارش میں بھیگتا سطر آیا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 دراڑے دراڑے گے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے ٹوٹ کے بکھرنا مجھ کو ضرور آتا ہے ورنہ عبادت والا شعور آتا ہے ورنہ عبادت والا شعور آتا ہے سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا اب جو تو نے ٹھکرایا تو سور نہ پاؤں گا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 دراڑے دراڑے گے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا بہت خوبصورت نعت پڑھی ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھی ہے زینب آپ نے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسری نعت خواہ میں چاہوں گی افشاں آپ آئیں اور آپ جو ہے اپنی خوبصورت آواز میں جو ہے نعت سنائیں آ جائیں بالکل بہت اسی طرح سے جو ہے نعتوں کا سلسلہ جاری ہے اور خوبصورت آواز کی جو ہے ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی موجود ہیں اور جو ہے ہم سوالات بھی کریں گے کس طرح سے جو ہے جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے کیوں منایا جاتا ہے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں یہ شرک ہے جبکہ شرک نہیں ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے مذہبی اسکالرز بھی موجود ہوں گے ہم ان سے سوالات کریں گے لیکن اب میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جو نعت خواہ افشاں موجود ہیں میں ان کی طرف جاؤں گی افشاں آپ پلیز نعت پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ لا الہ الا ہو پڑھیے
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीना बीबी आमना बीबी आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु पढ़ते हैं सल्लल्लाहु आज दरूद दीवार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुरे यकीन। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुरे यकीन। माहे नबूवत मोहरे रिसालत माहे नबूवत मोहरे रिसालत साहिबे खल्क़े अज़ीम नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। हामिदो महमूद और मुहम्मद दो जग के सरदार। हामिदो महमूद और मुहम्मद दो जग के सरदार। चांद से प्यारा राजा दुलारा चांद से प्यारा राजा दुलारा रहमत की सरकार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कितने खूबसूरत महफ़िल K21 ने जो आज अपने चैनल में जो है सजाई है नातों की। इसी तरह से हम जो है नातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ अफशा मौजूद थी, बहुत ही खूबसूरत अफशा तनवीर, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नात बयान की। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ जो है हम ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मनाना जश्न बहार आए मेरे प्यारे नबी झूमो आए मेरे सरकार आए मेरे प्यारे नबी क्यों मनाए ना जश्न बहार आए मेरे प्यारे नबी आए प्यारे मेरे सरकार आए मेरे प्यारे नबी मेरे प्यारे नबी मेरे प्यारे नबी अब्दुल्ला की आँख के तारे आम नबी के राज दुलारे अब्दुल्ला की आँख के तारे
हवाएं, ठंडी ठंडी मस्त हवाएं, खुशबू लाई दुरूदों के हार। आए मेरे प्यारे नबी, झूमो आए मेरे सरकार। आए मेरे प्यारे नबी, आए मोहम्मद प्यारे आए, नूर बहारे साथ मिलाए। आए मोहम्मद प्यारे आए, नूर बहारे साथ मिलाए। मक्का नगरी में आई बहार। आए मेरे प्यारे नबी, झूमो आए मेरे सरकार। आए मेरे प्यारे नबी, क्यों मनाए ना जश्न बहार। आए मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने नात पढ़ी। हमारे साथ मौजूद थे इकरा शहाब, और जो है इसी तरह से हम जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नातों का सिलसिला जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं जारी है, और जो है इसी तरह से हम एक और हमारे साथ मतलब वही नात को हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अब हम इसको ये कंबाइन करना चाह रहे हैं, और बहुत ही बताने की खूबसूरत जो नात है। इनके मेरे ख्याल से ये टीचर भी, इनके इंस्टीट्यूट भी हैं, और इसी तरह से ये बाकायदा जी नातों की ट्रेनिंग देती हैं, टीच करती हैं अपने जो इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों एक और जो है नात पेश करें। जज़ाकल्लाह। और मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी, बल्कि बड़ा खूबसूरत शेर है कि जिनके फैज़ान से इंसान को जीना आया, जिनके फैज़ान से इंसान को जीना आया, मरहबा उनकी विलादत का महीना आया, मरहबा उनकी विलादत का महीना आया। आप तमाम ही लोगों को अफशा तनवीर और इकरा शहाब और K21 की पूरी टीम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा मदीने की हाज़री के लिए। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दवा वहीं मिलेगी, मुझे चलो मदीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। हुजूर ऐसा कोई इल्ज़ाम हो जाए, आका हुजूर ऐसा कोई इल्ज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर ग़ुलाम हो जाए। सहारा चाहिए सरकार ज़िंदगी के लिए। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मेरी आंखों में समाना मदनी मदीने वाले, मेरी आंखों में समाना मदनी मदीने वाले। बन दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले, बन दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले। मदीने
واقعی آپ نے سچ کہا، نور آ گیا. جیسے عید میلاد النبی ہم سب لوگ مناتے ہیں، آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اور وہ اگر ان کی بات میں ان کی کتنی تعریف کروں، تعریف کا میں خیر میری تو کوئی اوقات بھی نہیں ہے. آج کے دن ہم لوگ جو ہے عید کی طرح سے منایا جاتا ہے، ہم لوگ ہر مسلمان سب تو بس. لیکن ہم جو ہے اس طرح سے نعتوں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے کیسرو کس رجن سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. بہت بہت شکریہ اسما نیاز صاحب. میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی، اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول پر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا یہ چاہوں گی کہ آپ کتنے عرصے سے جو ہے نعتوں کا اپنے اس طرح سے یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھا؟ الحمدللہ مجھے 15 سے 16 سال ہو گئے ہیں اچھا، نعت خوانی کرتے ہوئے. ماشاء اللہ. پہلے بچپن سے ہی شوق تھا، تو الحمدللہ جیسے پڑھتے گئے پھر کچھ پلیٹ فارمس بھی ملے، جیسے کہ نظام الاسلام، پھر گلشن احمد نعت کونسل، اس طرح کے کئی پلیٹ فارم آتے گئے. تو الحمدللہ انہیں کے ساتھ رہتے ہوئے ان سے بھی پڑھتے ہیں اور انڈیویجول بھی.
पढ़ते रहते हैं, तो यही बचपन से शौक है मेरा। अच्छा, तो इसके अलावा नात के अलावा कुछ और भी आप लोगों के कुछ, जैसे हमारे साथ एक मजहबी स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी सवालात करूँगी, तो आप लोगों का भी कोई इस तरह से कोई आप लोग इंस्टीट्यूट वगैरह आप लोगों का है या फिर बस जी, नात? हमारा इंस्टीट्यूट एक है गुलशन नात काउंसिल एंड अकेडमी, अच्छा अच्छा। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है। तो बहुत मशहूर मारूफ सनाफा हज़रात वहाँ पे आते हैं, और जितने भी उलमाए कराम हैं दीगर वो सब वहाँ पे, और महफिल भी होती रहती हैं इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वहाँ पे जाके अपनी हाजिर यकीनी बनाते हैं। इसी तरह वकास भाई और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं सब लोग पढ़ते रहते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं हमारे साथ अभी जो है मजहबी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, मुख्तार अहमद अज़ीज़ साहब। मैं आपका खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में हैं। सर मैं आपसे ये सवाल करूँगी, जैसे ईद मिलादुन्नबी की जो है जब आमद होती है तो लोग जो हैं अपने घर जो है सजा रहे होते हैं, चिरागा कर रहे होते हैं, तो क्या नात ख़वानी कर रहे होते हैं, महफ़िलें, तो ये सब जो है ये कुछ शर्क में तो नहीं आती? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने इस तरह से मतलब मुझे कहा भी जाता है, मैंने खुद भी सुना है कि ये चीज़ करना जो है मुनासिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये सवाल किया जाता है कि ये मीलाद इस तरह से मनाना, चरागा करना, लाइटिंग करना और जुलूस वग़ैरह निकालना और इस तरह की महाफ़िल का इनेकाद करना, ये हमारे दौर का रिवाज है और ये 6ठी सदी से ये शुरू हुआ ये मामला। आका अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से सहाबाए किराम का दौर, ताबीन का दौर, तबा ताबीन का दौर, उस दौर में कुछ नहीं था जी। तो देखें इस्लाम में हर वो चीज़ जायज़ है, हर वो चीज़ अच्छी चीज़ है जिसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान ना हो। और इसको लोग फिर कहते हैं कि ये या तो शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है या फिर बिदअत के ज़ुमरे में आ जाता है। हम इसको बिदअत भी नहीं कहेंगे, ये नई ईजाद है, लेकिन नई ईजाद ऐसी है कि ये अहसन है, अच्छी ईजाद है ये। इससे हमारे दिल को भी सुकून मिलता है, हमारा ईमान भी मजबूत होता है और हमारे आने वाली नस्लों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी मोहब्बत भी उजागर होती है। हम अगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने आने वाली नस्लों को बताना चाहें तो वो मीलाद का एक सबब है। मीलाद का ये महीना हमारे बच्चों में आगाही और शऊर पैदा करता है। और फिर ये भी देखें कि ये चरागा करना और ये लाइटें लगाना, खूबसूरत फूल पहनना, सजाना, ये कोई आज अच्छे का नहीं कपड़े है। पहनना, ये तो ईद की तरह नए जैसे कपड़े पहनना ईद का समा बन जाता है और खुशियों का माहौल हो जाता है। यकीन जाने इसके लिए एक जुमला काफ़ी है कि सारा आलम भी आका अलैहिस्सलाम की विलादत पर कुर्बान हो जाए, ये खुशियाँ भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें ना, आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई, आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया ना कि मेरी जब विलादत हुई तो मेरी माँ आका अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा जब आका अलैहिस्सलाम बतन अतहर से इस दुनिया में जलवागर हुए तो एक नूर ज़ाहिर हुआ। उस नूर की रोशनी से हमारी माँओं से, हज़ार माँओं से बढ़कर माँ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शाम के महल्लात को भी देखा उस नूर की रोशनी से। और आज अगर हम ये चरागा, ये लाइटिंग, ये थोड़ी बहुत रोशनी जो चंद घंटों के बाद बुझ जाती है, ये करके अगर हम अपने दिल को सुरूर बख्शते हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश पे खुद कैसे खुशी का इजहार करना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश के मुताल्लिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। अच्छा। और हम सब जानते हैं कि पीर के दिन आप ये एहतिमाम के साथ रोज़ा रखा करते थे। आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन स्पेशली ये आप रोज़ा रखते हैं, इसकी आखिर कोई एक ख़ास वजह है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक वजह तो ये है कि इस दिन कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, इस दिन पीर के दिन। और फिर फरमाया कि इस दिन ख़ास तौर पे मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि इस दिन मुझ मोहम्मद को इस दुनिया में भेजा गया है। सुभान अल्लाह, विलादत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन हुई। आका अलैहिस्सलाम बतौर शुक्राना के इस दिन रोज़ा रखा करते। सुभान अल्लाह। और आज आप देखिए जुम्मे का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का जो है आज दिन है और आज के दिन उनकी जो है पैदाइश हुई थी, तो माशाल्लाह ये भी कितना खूबसूरत जुम्मे का दिन, वैसे भी मुबारक दिन कहा जाता है और दिनों की नस्बत जुम्मे के दिन को मतलब दिनों का बादशाह कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कितने खुश नसीब है कि हमें ये भी, अल्लाह देखिए ज़िंदगी बहुत को कुछ नहीं पता कि हमें ये भी रबीउल अव्वल जो है हमें नसीब हुई। हमारे साथ मौजूद हैं वक्कास मोहम्मद वक्कास कारी मोहब्बत वक्कास हमारे साथ मौजूद है। और जो मैं चाहूँगी कि वक्कास आप अपनी आवाज़ में खूबसूरत
خوبصورت سی کوئی نعت جو ہے پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنا پڑھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام اور سید بیدی حسن حیرت الہبادی صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام آمد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. زمین سے در آسماں تک گئے زمین سے در آسماں تک گئے زمین سے در آسماں میرے سرکار کا چرچا میرے سرکار کا چرچا مکان سے لا مکان تک گئے میرے سرکار کا چرچا میرے سرکار کا چرچا مکان سے لا مکان تک گئے. اور بتاؤں کیا کہ میرا سلسلہ ان سے کہاں تک گئے بتاؤں کیا کہ میرا سلسلہ ان سے کہاں تک گئے. میں خاک پائے احمد ہوں میں خاک پائے احمد ہوں میری نسبت یہاں تک گئے. میں خاک پائے احمد ہوں میں خاک پائے احمد ہوں میری نسبت یہاں تک گئے. ہے ایک تنویر کا رستہ میرے دل سے مدینے سے رستا مدینے سے رستا خدا دو جہاں تک گئے مدینے سے رستا خدا دو جہاں تک گئے. فرشتوں کو سرکار جو جہاں جہاں میرے سرکار جو میرا دو جہاں تک گئے. خدا کا حکم سید الکونین گئے
से जहाँ से गए तो फिर नाफिज से जहाँ से उस जहाँ तक माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमारे साथ मौजूद थे वक्कास अहमद कादरी। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने जो है अपना कलाम, अपनी नात पेश की। मैं आपके पास फिर से आऊँगी। मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, तमाम अंबिया इकराम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ख़त्म नबुव्वत क्या है? आका अलैहिस्सलाम देखें, तमाम अंबिया किराम का अपनी जगह एक मर्तबा और मकाम है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस बात को वाज़ेह तौर पर इरशाद किया, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद रसूलों को हमने बाज़ पर फजीलतें अता फरमाई। लेकिन मेरे और आपकी खुशकिस्मती कि हमारे हिस्से में ऐसे नबी मुकर्रम आए जो अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, जो ख़ातमियत पर मोहर लगाने आए कि मेरे बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान करीम में इस बात का गवाह बनाकर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहलवाया कि आप फरमा दीजिए कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। आज हम इस लफ्ज़ को भी गौर करें ना, तो ये कोई मेरा और आपका या किसी स्कॉलर का कहा हुआ लफ्ज़ नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का लफ्ज़ कहा हुआ है। और अल्लाह पाक ने अपने सोने मोहम्मद के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि मेरे प्यारे मोहम्मद के बाद इस कायनात में कोई नबूवत या रिसालत लेकर कोई भी नहीं आ सकता। जो कहेगा, जो दावा करेगा, जो कहेगा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ पैगाम है, नबूवत है या रिसालत है, वो झूठा होगा। इसलिए तमाम अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने मरातिब अता किए, मकाम अता किए, फ़ज़ाइल अता किए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का जो मर्तबा है वो सब नबियों पर मोहर सबत करने वाले हैं, सब नबियों के आखिर में आने वाले हैं और सबसे अव्वल में इस तरह आने वाले हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी आखिरी नबी बनकर मौजूद था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाने लगा था। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी बनकर मौजूद। सुभान अल्लाह। तो अव्वल भी थे और आखिर भी थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सुभान अल्लाह। इस्लाम में ईद उल मिलादुन नबी के जायज़ होने या ना होने का तसव्वुर क्या है? देखिए, ईद मिलादुन नबी, सवाल ये किया जाता है कि इस्लाम में तो दो ईदें हैं, एक ईद उल फित्र के नाम से मौसूम है और एक ईद उल अज़हा के नाम से। ये आप तीसरी ईद कहाँ से ले आए? ईद मिलादुन नबी, ईद कहते हैं खुशी को, खुशी का इजहार करने का दिन। और ईद उल फित्र में और ईद उल अज़हा में हम अपने अपने तरीक़े से खुशी का इजहार करते हैं। मैं और आप इस बात को इस तरह समझें कि इस कायनात में सारी खुशियाँ एक तरफ, जो अल्लाह पाक ने हमें इरशाद फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, अल्लाह का फजल मिल जाए या अल्लाह की तरफ से कोई रहमत मिल जाए तो खुशियों का इजहार करो। इस कायनात में रसूल अकरम से बढ़कर कोई फजल नहीं है, रसूल अकरम से बढ़कर हमारे लिए कोई रहमत है ही नहीं। और अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमा दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं अल्लाह होकर, मैं रब होकर तुम्हारे लिए रहमत बनाकर भेज रहा हूँ। तो रहमत हमें मिली है, हम खुशी का इजहार करते हैं और ईद बनाकर उसे लोगों के सामने पेश करते हैं कि हम इस दिन को ईद उल फित्र से भी अफजल जानते हैं। टाइम से हम इसको जो है मतलब सेलिब्रेट कर रहे होते, सजा रहे होते हैं। जी हाँ, एक खुशी, एक्साइटमेंट होती है कि हमने 1-2 महीना पहले हमारे अंदर एक जज्बा उभर आता है, हम तैयारी करते हैं। जैसे ईद की तैयारी हम लोग करते हैं, वैसे ही हमारे लिए भी ये ईद है। बैजेज ले रहे होते हैं, झंडियाँ, छोटे बच्चों में एक जज्बा होता है, अमामा शरीफ खरीद रहे होते हैं, अपने लिए एक एहतिमाम कर रहे होते हैं। और जो नौजवानों का जज्बा आप देखें कि गली मोहल्ले को सजाने के लिए वो कलेक्शन भी कर रहे होते हैं कि यार आप इतना दे दो, आप इतना दे दो। क्या है कि आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करना है। माशाल्लाह, बिल्कुल। मैं आपसे दोबारा से मुखातिब होंगी, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हंज़ला, नन्हे जो है नातख़्वा है, कम से नातख़्वा भी कहा जा सकता है। मैं हंज़ला आपको चाहूँगी, आप मुझे थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुनाएं, नात सुनाएं। सुभान नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में
में सरकार का मेराद करेंगे, हर हाल में सरकार का मेराद करेंगे। जश्ने विलादत की रौनक पे अमरूद मरते सुनी बढ़ते रहेंगे। अपने नबी की अज़मत का चर्चा करते हैं, सुनी करते रहेंगे। कुछ चलने वाले देखते कहते हमेशा, सरकार की याद पे लगाते हैं क्यों पैसा, रुपया पैसा। ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा दे। ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा दे। कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा, मेरे नबी आ गए हमारा मुस्तफा, प्यारे नबी आ गए हमारा मुस्तफा। सांझ में महराज नबी, आसियों की लाज नबी, नबी को न सरकार नबी कर बिठे और आज नबी। दो जहां के राजवान मेरे नबी आ गए, हर हाल जी फसादी वतन से भगाएंगे। कण कर दुरूद सबको मिलादी बनाएंगे, कण कर दुरूद सबको मिलादी बनाएंगे। लाएंगे हम हुजूर का इस्लाम तख्त पर, लादीनियत के सारे बुतों को बिदाएंगे। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। थैंक यू सो मच। अंजिला हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद अंजिला। उन्होंने बहुत ही प्यारे एक जज्बे से उन्होंने ये देखी, ये है हमारे मुसलमान घरानों के बच्चे जिस जज्बे से उन्होंने डांट को अपनी जो एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग में। मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा से जो हमारे साथ मौजूद है इस्लामिक स्कॉलर, मैं उनके पास जाऊँगी। दौरे हाज़री में हमें आशिक रसूल होने के तकाज़े कैसे पूरे करने चाहिए? देखिए, जिस तरह भी हम मीलाद का एक तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है, तो दौरे हाज़िर में हमें अखलाक के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम के साथ हमारी मोहब्बत एक अपनी जगह है, इश्क़ रसूल के बग़ैर हमारा ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सारी कायनात, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, सब कुछ एक तरफ, अगर मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम्हारा ईमान कामिल ही नहीं हो सकता उस वक्त पर। लेकिन यहाँ एक बात हमें सोचनी चाहिए कि हम अगर मिलाद मनाएं या महफिल का इनेकाद करें या जिस तरह भी हम सेलिब्रेशंस करें, उसमें हमें दूसरे लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अखलाक के दामन को हमें बुरोकार रखना चाहिए और अपने सामने रखना चाहिए कि हमारे हाथ से, हमारी ज़ुबान से किसी मुसलमान को तो क्या, किसी गैर मुस्लिम को भी तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये हमारी तरफ से एक नुकसान की बात है। हमें अपने भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें नमाज की पाबंदी भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का मीलाद का तसव्वुर ये नहीं है कि हम इस्लाम की दीगर शियार को छोड़ दें, सिर्फ एक मीलाद और नारे लगाते जाएं। ये भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ नमाज फ़र्ज़ है, इसके साथ फर्ज है, उसके तो माफ़ी है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी माफ़ी, और नमाज और रोज़े की माफ़ी है ही नहीं। हुकूकुल्लाह, नमाज हुकूकुल्लाह है, लेकिन उससे पहले हुकूकुल इबाद हैं। अगर हम हुकूकुल इबाद को छोड़कर अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और न जाने हम कितने लोगों का दिल दुखाकर, एक दफ़ा याद आ रहा है हमें। जी हाँ बिल्कुल, और कितने लोगों का दिल दुखा रहे हैं हम, तो ये बात नहीं है। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि पूरे साल के बाद एक दफ़ा हमें याद आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपने नबी को हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा अपने दिल में याद रखना चाहिए, उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, उनका हर दिन मीलाद मनाना चाहिए।
بے شک یہ تو ہر ہے. دن میلاد. جس طرح سے ہم لوگ اپنے پورا مہینہ ہم لوگوں کا چلتا رہتا ہے, نعت محفلوں کا سلسلہ رہتا ہی ہے. تو بس یہ ہے کہ آج کا میں, کیونکہ ہمارا ٹائم ہے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے, تو میں چاہوں گی کہ اینڈ میں اگر جاتے جاتے میں بس یہی کہوں گی کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اور جو ہے میں چاہوں گی وقاص آپ کی طرف کہ آپ جو ہے پھر سے ایک نعت جو ہمیں سنائیں تاکہ ہم اینڈنگ جو ہے اپنی آپ کی نعت سی کریں. آپ آ جائیں یہاں پر آ جائیں. سال جو ہے اس کو جو ہے کنٹینیو رکھنا چاہیے کہ مطلب ہم صرف ایک ہی دفعہ نہیں. میں وقاص چاہوں گی کہ آپ کریں. پروفیسر اقبال صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. درود پڑھتی ہے میری سانسیں اور سلام کرتی ہے میری آنکھیں. درود پڑھتی ہے میری سانسیں سلام کرتی ہے میری آنکھیں. یہ صرف چھلک رہے, یہ صرف چھلک رہے ہیں. ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہے میری آنکھیں. ایک انداز گفتگو ہے کلام کرتی ہے میری